Hello everyone. Today I am here for explaining one interesting topic, that is concept of marketing. In this session I will discuss one concept, production concept. What is the philosophy in production concept? There is so many concepts are there, like production concept, product concept, selling concept, marketing concept, integrated concept, and social marketing concept. In each and every concept the philosophy is a different. So today I want to discuss one concept from a fundamental of marketing management subject is production concept. Fine, this is our subject and our topic is production concept. Before move to the production concept, we need to understand what do you mean by marketing. So here I am with one definition. So if you are unable to see, then just zoom out your screen so that you can easily see whatever available in a screen. Fine. So according to the Philip Kotler, what the Philip Kotler say about the marketing? Philip Kotler say marketing is human activity. फर्स्ट पार्ट इज कि मार्केटिंग क्या है, एक ह्यूमन एक्टिविटी है जो डायरेक्ट करते हैं satisfying the need and want through exchange process. So here Philip Kotler say by exchanging goods and services with the money and company provide the satisfaction to the customer. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कंपनीज है अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं बाय द मनी एंड गिव अ सेटिस्फेक्शन टू कस्टमर्स वॉट एवर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर, कंपनी provide the product and satisfying that need and want. That is called marketing. In marketing, company do advertisement, publicity, promotions, and by this company can sell easily to customer. So here one concept which I want to discuss in this session is production concept. In this concept, what is the main philosophy? Here the main philosophy is customer always ready to buy the product at lower price, and whatever product available in a market at the lower price, customer always buy that product. This is main philosophy of this concept. इस कंसेप्ट के अंदर ये बोला गया हुआ है कि जो भी मार्केट में अवेलेबल है कम प्राइस में, वो प्रोडक्ट कस्टमर हमेशा बाई करेंगे ही. दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द प्राइस, दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द क्वालिटी. मतलब कि वो लोग क्वालिटी से उतना ज़्यादा, क्वालिटी में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं करेंगे. वो यही सोचेंगे कि प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल एट द लोअर प्राइस, fine, we are ready to buy that. So this is the main philosophy of production concept. Student always get confused in production concept and product concept. इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो मैं बता देती हूँ. प्रोडक्शन कंसेप्ट में ये बोला है कि प्राइस लोअर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, दो चीज़ है प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर, लोअर प्राइस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. मतलब कम प्राइस में जो भी अवेलेबल है कस्टमर विल बाय दी प्रोडक्ट. ये हो गया प्रोडक्शन कंसेप्ट का. प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या बोला है? प्रोडक्ट कंसेप्ट जो नेक्स्ट कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये बोला है कि उसमें प्रोडक्ट को ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं कस्टमर्स. कस्टमर वांट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये बोला है कि प्राइस भले ही ज़्यादा हो
बट कस्टमर को अच्छी प्रोडक्ट अगर मिले तो वो बाई करेंगे ही। समझ में आ रहा है दोनों कंसेप्ट में क्या है? प्रोडक्शन में प्राइस को इम्पोर्टेंट दिया गया हुआ है। एट द लोअर प्राइस वॉट एवर अवेलेबल इन अ मार्केट कस्टमर वुड लाइक टू बाय। प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्या है? कस्टमर बाय द प्रोडक्ट विच इज़ अवेलेबल इन अ गुड क्वालिटी, दे आर नॉट बॉदरिंग अबाउट द प्राइस। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों डिफरेंस है। कस्टमर विल ऑलवेज गेट द कन्फ्यूजन इन दिस टू कंसेप्ट। सो हियर product concept. This concept holds that the buyer would purchase whatever is produced and hence it is not necessary to identify the need and preference. यहाँ पे ये बोला गया हुआ है कि नीड और प्रेफरेंस का हमें देखने की ज़रूरत नहीं है एज ए कंपनी। सिर्फ हमें क्या करना है? प्रोडक्ट कम प्राइस में दे दो, कस्टमर बाई करेंगे, ऐसा इस कंसेप्ट में बोला गया है। कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर का प्रेफरेंस क्या है, ये कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इस कंसेप्ट में बोला है। सेकंड थिंग, व्हाट द फिलिप कोटलर से? फिलिप कोटलर से द प्रोडक्शन कंसेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल। मतलब फिलिप कोटलर ने ये बोला है कि हर एक जो कंज्यूमर या तो फिर कस्टमर, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड कंज्यूमर। कस्टमर मतलब वो बाय दी प्रोडक्ट एंड कंज्यूमर मतलब वो कंज्यूम दैट प्रोडक्ट, मतलब जो यूज़ करता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं। नॉर्मली इंटरचेंजली वी आर यूजिंग द वर्ड कस्टमर एंड कंज्यूमर बट बोथ द वर्ड आर डिफरेंट। कंज्यूमर मीन्स वो यूज़ द प्रोडक्ट and customer means who buy the product. Customer buy the product, it doesn't mean that customer use that. For example, customer मतलब जैसे कि मैंने बोला कि कस्टमर बाई करता है, ज़रूरी नहीं है कि वो उनके लिए ही यूज़ करे, मतलब उनके लिए वो बाई करते हैं। सपोज़ आपके फादर है, बुक लेके आते हैं मार्केट में से, वो अपने लिए नहीं लाते। योर फादर इज़ जस्ट कस्टमर, they buy the product and who is the consumer? Obviously son या daughter, फाइन। तो ये है कंज्यूमर मतलब वो कंज्यूम द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे जो लिखा है वो पढ़ते हैं। प्रोडक्शन कंसेप्ट होल्ड दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट, कंज्यूमर फेवर करते हैं ऐसे प्रोडक्ट को दैट आर अवेलेबल एंड हाईली अफोर्डेबल, मतलब जो मार्केट में अवेलेबल है अफोर्डेबल प्राइस में। Therefore, management should concentrate on improving production and distribution efficiency. तो इसीलिए सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत है वो है मेक अवेलेबल प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस। Each and every company required to emphasize on availability of product at affordable price. There is certain assumption in this concept. Okay, अगर ये assumption ना हो तो ये concept reality में नहीं चलेगा. So these are all the various assumption. What are that assumption? First, consumer are interested in goods that are available to them and are of lower price. That means first assumption में ये बोला है कि कस्टमर को किस में इंटरेस्ट है? प्रोडक्ट होनी चाहिए और लोअर प्राइस में। सेकंड, कंज्यूमर हैव नॉलेज ऑफ द प्राइस चार्ज बाय द राइवल फर्म। राइवल फर्म मतलब कंपटीटर फर्म। यहाँ पे ये बोला है कि सारे कस्टमर को कितने कंपटीशन है मार्केट में, कितनी कंपनीज हैं, उसकी प्राइस क्या है, दे नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। Next, exempt price, consumer do not take into account other differential in the product of the same class. इसमें ये बोला है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस को ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं, स्ट्रेस करते हैं सिर्फ कि प्राइस कम हो। उसके अलावा कस्टमर आर नॉट बॉदरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स। दिस इज़ अ थर्ड assumption.
क्या है थर्ड एजम्पशन के अंदर कि कस्टमर सिर्फ प्राइस को, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जेम्प्ट प्राइस, कस्टमर डू नॉट टेक इनटू अकाउंट, मतलब प्राइस के अलावा किसी और चीज़ के बारे में, किसी और डिफरेंस के बारे में कस्टमर नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि प्राइस लोअर है, दे विल बाय द प्रोडक्ट. And the last assumption is, hence management should concentrate only on production efficiency and lower price. So इसीलिए क्यों, क्योंकि कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए वो भी लोअर प्राइस में, तो मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, कंपनी को क्या करना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्शन पे कंसंट्रेशन करो भाई. लोअर कॉस्ट अगर आपकी होगी तो कस्टमर प्रोडक्ट आपकी बाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि लोअर कॉस्ट होगी तो प्राइस भी लोअर होगा, प्राइस लोअर होगा तो कस्टमर आपकी प्रोडक्ट जो है वो बाई करते हैं. उसके बाद ये जो पैराग्राफ है उसमें ये बोला हुआ है कि प्रोडक्शन कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग में बी अ प्रॉपरली इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया. इंडिया इज़ नॉट अंडर डेवलप्ड कंट्री राइट नाउ, इंडिया इज़ डेवलपिंग कंट्री. फाइन, हम ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते अंडर डेवलप, आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, तो हमारी कंट्री जो है वो डेवलपिंग कंट्री की डेवलपिंग कंट्री के अंदर आता है. यहाँ पे भले ही लिखा हुआ अंडर डेवलप बट आवर कंट्री इज़ डेवलपिंग कंट्री. मतलब यहाँ पे ये बोला हुआ है कि इंडिया के अंदर most of the customers are price sensitive. What do you mean by price sensitive? There is two concept, price sensitive and product sensitive, price sensitive and quality sensitive. Price sensitive, that means what? Always put emphasis on price, they are not bothering about the quality. Whatever the quality is available, they want a less price, है ना. और क्वालिटी सेंसिटिव में क्या होता है, दे customers put a stress on quality, they are not bothering about the price. Whatever the price, they are accepted that price and they want a quality in a product. फाइन, तो ये चीज़ है. तो यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये बोला है कि जो ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ख़ास करके जो लोग हैं उसकी एवरेज इनकम कम है, इस तरीके की कंट्री के अंदर ये कंसेप्ट चलेगा, क्योंकि peoples are always ready to buy the product at the lower price. Okay, if there is 5 products available in a market and price of 5 products is price of 4 product is higher than 1, तो वो वही प्रोडक्ट खरीदेंगे जो जिसकी प्राइस कम है. ओके, मोस्टली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे इंडियन ऐसे हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली एवरेज जो कस्टमर्स है दे वुड लाइक टू बाय द प्रोडक्ट एट द लोअर प्राइस. फाइन, तो ये चीज़ है प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर. यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिया है कि सपोज़ कि ग्राउंड नट ऑयल मतलब कि मगफळीનું तेल, दैट इज़ द गुजराती मीनिंग ऑफ दैट. फाइन, सो इफ़ द ग्राउंड नट oil is not available, then palmolive oil or cotton seeds oil, sunflower oils, these are all the oils the customer are ready to buy. Fine, just because it is available at the lower price. So at the lower price, whatever available in a market, customer would like to buy that. So this concept is say that you must have to lower down the price, customer always ready to buy that प्रोडक्ट. तो ये कंसेप्ट में क्या बोला है कि कस्टमर हमेशा कम प्राइस में बाई करेंगे. तो क्या करो, आप कम प्राइस रखो, ज़्यादा लोग बाई करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा. एंड इफ़ योर प्रोडक्शन इज़ हाई देन योर कॉस्ट इज़ रिड्यूस डाउन, पर प्रोडक्ट कॉस्ट विल रिड्यूस डाउन एंड अल्टीमेटली यू कैन चार्ज द लेस प्राइस. फाइन, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे प्रोडक्ट कंसेप्ट. व्हाट डू यू दिस ऑल ओवर द कंसेप्ट इज़ वेरी क्रूशियल. You must have a knowledge about this concept as a marketing student. As a marketing student आपको ये concept तो पता होने ही चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे what do you mean by प्रोडक्ट कंसेप्ट. प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है उसका ओवरव्यू मैं अभी दे देती हूँ. प्रोडक्ट कंसेप्ट में ये बोला गया हुआ है कि कस्टमर आर पुट मोर एम्फसाइज ऑन क्वालिटी. प्रोडक्शन में क्या है, प्राइस, प्रोडक्ट में क्या है, क्वालिटी. फाइन, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ ग्रेट डे.